We welcome everyone once again to this online Sunday service. एक और बार हम आपको हमारे सेवकाई में स्वागत करते हैं And we have been studying about the different strategies that God used in the Bible to give his people victory. हम आपको अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को चुन रहे थे उसके बारे में हम सीख रहे थे And we are focusing on the victory that God gave a simple man named Gideon. और हम गिदियन की जीवन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने गिदियन को सहायता किया And we're reading in the book of Judges about how a simple man who didn't believe in himself, who thought he was a nobody, God declared as a warrior. हम एक साधारण मनुष्य के बारे में पढ़ रहे थे जो अपने आप से ये सोचता था कि वो कुछ नहीं है, वो जो कोई भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसकी मदद की, उसकी सहायता की। Gideon was in a time where he was hiding from the enemy. एक समय था जब गिदियन जो है शत्रु के नजर से जो है वो छुप रहा था And at that moment, an angel appears to Gideon and calls him, "You great warrior of the Lord." और उस समय पर जो है एक स्वर्गदूत उससे सामना उससे मुलाकात करती है और कहते हैं कि तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र। Now imagine what Gideon must have felt when the word of the Lord came to him directly from an angel. Well, while Gideon was hiding, someone says, "You are a great warrior." देखिए मैं वो सोच रहा हूँ उस समय पर गिदियन को किस प्रकार से महसूस हुआ रहेगा जब गिदियन जो है छुपा हुआ था और स्वर्गदूत आकर उससे ये कहता है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योद्धा कर कर जब उसे पुकारते हैं तो उसे कैसा लगा होगा। If you read the book of Gideon, the story of Gideon in your own time in the book of Judges, you will see that the first reaction of Gideon was kind of to doubt and to laugh at what the angel said. देखिए जब अगर आप सबसे पहले गिदियन के बारे में पढ़ोगे उस किताब में तो आपको ये समझ में आएगा कि गिदियन ने जो है हंसकर या फिर एक संदेह के साथ जो है उस संदेश को लिया। You imagine yourself right now in your situation, going through your troubles and your suffering, and the word of God comes to you, and it is completely opposite to what you are experiencing right now. देखिए जब आपके जीवन के इस समय पर जो है आप जो ये सोच के देखिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर आपसे बात करे जो आपकी स्थिति से एकदम पराय है, एकदम अलग है, तो आप उसे किस प्रकार स्वीकार करोगे। For example, if you are someone that is in bed because your health is gone and you can barely walk, and the word comes that you are going to fly like an eagle and you are going to run like a deer, how would you feel? देखिए अगर आप बिस्तर पे हो, आप बिस्तर में बीमार हो, बिस्तर बिस्तर से आप लेटे हुए हो, आप उठ नहीं सकते, परंतु अगर आपको एक वचन ऐसे सुनाई दे रही हो कि आप हील के समान उड़कर चलोगे, उड़ोगे, तो आपको किस प्रकार लगेगा। Imagine if you're someone like I used to be, where I had a difficulty speaking, especially in public, and I was very nervous, and people would laugh at me at the way I would speak. And then the word of the Lord came to me and said, "You are going to preach to the nations." देखिए अब मेरी कहानी लीजिए। मैं लोगों के सामने जो है बात करने से, प्रचार करने से बहुत घबराता था, मुझसे नहीं हो पाता था, परंतु मैंने ये वचन सुना कि मैं दुनिया से या फिर अलग अलग राज्य में जो है प्रचार करूंगा, कर परमेश्वर का एक वचन मेरे और आया। And so this is what happened with Gideon. He was someone who was hiding, and the word came, and the first thing he did was he doubted. देखिए गिदियन को जब परमेश्वर से संदेश आया तो सबसे पहला गिदियन ने क्या किया, उसने संदेह किया, उसने संदेह किया। So when you doubt, it's normal to doubt in the beginning, but you have to learn to switch your mind and come to understand that for God, nothing is impossible. देखिए शुरुआत में जो है कई बार जो है हमें संदेह होता है, आता है, परंतु आपको अपने दिमाग से ये कहना है कि कुछ भी हो, परमेश्वर से कोई चीज संभव नहीं है। And if for God nothing is impossible, that means that for God you are
not impossible. और परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है, तो इसीलिए परमेश्वर के लिए मेरे बारे में ये चीज जो है वो बिल्कुल असंभव नहीं है। In other words, everything God wants to do through you is 100% possible. और इसका मतलब यह है कि हर एक चीज जो परमेश्वर हमारे द्वारा या आपके द्वारा करना चाहता है वो 100% जो है वो सफल होगा। No matter what your past has been, no matter what your present situation is, for God, changing your future is a very small thing. देखिए, आपका भविष्य क्या था, आपका पूर्व काल क्या था, कुछ परमेश्वर से फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, कैसे भी हो, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। If you're going right now through a moment of lack where your finances are all stuck up, you have no job, you are constantly depending on your credit cards, God will say, and God is saying, you will no longer be a borrower, but you will be a lender. देखिए, आपके इस समय पर आर्थिक एक आर्थिक बंधन आपके अगर जीवन में है कि आप जो है आर्थिक विषय पर पैसे के प्रति बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आश्रय रखकर जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आवाज इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम जो है उधार मांगोगे नहीं, परंतु उधार देने वाले या फिर लोगों को पैसे देकर मदद करने वाले व्यक्ति बनोगे। And these are things that are possible when we walk correctly in the ways that God has put in front of us. देखिए, ये इस तब संभव होगा जब हम परमेश्वर ने जिस प्रकार हमारे सामने चीजें रखी है उस पर पालन कर मानकर जब हम चले, तब ये चीजें हमारे जीवन में संभव होगा। When we start declaring the word of God over our lives and believing that this God that has said these things in the Bible can actually do them, then things will start to change. जब हम ये विश्वास करें कि पवित्र पुस्तक का परमेश्वर ये चीजें मेरे जीवन में करने के लिए सहायता करेगा, वो संभव है, तब जीवन में जो है चीजें हमारे जीवन में बदलने शुरुआत करेगी। Now, of course, these promises and this power and this ability that God has to change us is only for those who have completely surrendered to Jesus Christ. देखिए, ये जो व्यक्ति पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है, उनके जीवन में जो है ये बदलाव को हम देख सकते हैं। In other words, you will ask according to God's will for your life when you're completely surrendered to Jesus Christ. आप पूरी तरह जब परमेश्वर के हाथों पर जब समर्पित करते हो, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके बारे में आप परमेश्वर से पूछोगे। So instead of only asking for a complete healing in your life, you will actually be where you are in bed and pray for everybody else's healing. जब आप बीमार हो, बिस्तर पे हो, आपकी चंगाई से पहले जो है हर एक व्यक्ति जो बीमार है उनके चंगाई के लिए जो है आप पूरी तरह प्रार्थना करोगे। If you're someone that is in lack of some kind financially, you will be the one that is the first one to give from what you have to others instead of just waiting for God to bless you financially first. देखिए, आप जो है अगर कोई तकलीफ में है, कोई आर्थिक तकलीफ में है, तो आप होगे पहले व्यक्ति जो अपने जेब से पहले आप देने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद परमेश्वर आपको आर्थिक तौर पर जो है वो आपको आशीष करेगा। See the story in the Bible where Jesus is watching over the people that were bringing the offerings. There was a big distinction between the one that gave from his abundance and the one that gave from their lack or their need. देखिए, हम पवित्र वचन में ये देखते हैं, एक इस प्रकार की उपमा देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो जिनके पास बहुत था, धनराशि था, उसमें से वो एक हिस्सा परमेश्वर को देता है, और दूसरी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जहां उनके पास कुछ नहीं था, उसमें से उनका जो सब कुछ था वो परमेश्वर की ओर वो निछोवर करते हैं। And Jesus commends and praises the woman, the widow, who gave from her lack and her need to the Lord because she understood that everything belongs to God. देखिए, परमेश्वर जो है उस विधवा स्त्री को इतने प्रसन्न उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, जो आखिरी चीज थी वो भी उसने परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दी, ये जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर से कोई चीज असंभव नहीं है। You see, I want you to focus on this because many times
we wait for everything to happen in our lives before we start acting as the person God wants us to become. देखिए, मैं आपको आपकी ध्यान को मैं इस विषय पर लेके आना चाहता हूँ। हर बहुतायत से समय से जो है हम हर एक चीज अपने जीवन में पूरी होने के लिए हम इंतजार करते हैं, परंतु परमेश्वर उसके पहले ही परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस जीवन में प्रवेश करें। See, when God says something in the Bible about you or about me, we have to first start living as if it is already done. देखिए, जब परमेश्वर कोई चीज पवित्र वचन से हम हमारे जीवन की ओर बात करता है, तो हमें जो है उसके अनुसार क्या वो चीज अपने जीवन में हो चुका है, ये मानते हुए हमारे जीवन को हमें जीना है। In other words, before you have the $1,000,000 to start to give to the Lord, start giving with what you have right now. देखिए, $1,000,000 परमेश्वर को देने का जो ख्वाब है या इच्छा जो आपको होगा, उसके पहले जो कुछ आपके पास है अभी या फिर कितना आप दे सकते हो, वो देने की शुरुआत अभी से करो। Before you receive that gift of the Holy Spirit for healing and getting people out of wheelchairs, when you pray over them and lay hands on them, start praying for them right now while you are in your sick bed. देखिए, जब आप अपने बीमार बिस्तर के कटिए पे हो, तभी जो है लोगों के लिए जो व्हीलचेयर में है, जो तकलीफ में है, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। You know that God does not need you to go someplace and touch someone and pray over them for the Holy Spirit power to work, right? देखिए, आप ये जानते हो कि परमेश्वर आपसे ये आशा नहीं रखता कि आप उस जगह पे जाए, उनके ऊपर हाथ रखे ताकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर उन्हें चंगाई दे। We, over this online meeting, we have had many people who have come online. We simply pray for them. They are in a different nation and they have received healing right where they are. देखिए, ये ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा अलग अलग राज्य में जो है हमने प्रार्थना की है, लोगों ने प्रार्थना मांगा है, स्वीकार किया है और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। We are not waiting for the big meetings where thousands of people come and we go one by one laying hands on them, because this is not what God wants. He wants to show that if we believe in His word, everything is possible. देखिए, हम उस महान बड़े मीटिंग की इंतजार नहीं कर रहे हैं जहां पर हम लोगों के सर पर हाथ रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। So the first step, if you want to truly achieve the victory God has prepared for you, is to believe and not to doubt who God is. देखिए, सबसे पहला विजय का रहस्य यही है कि परमेश्वर पे भरोसा रखे और ना कि उस पे संदेह रखे और ये समझे कि परमेश्वर कौन है। The Bible says you have to believe that God is and that God exists and that He is the rewarder of all good things in your life. देखिए, आपको ये बात को मानना है, समझना है कि परमेश्वर कौन है, वो क्या है और वो ही है हमारे जीवन के हर एक भले चीजों का हमें हमें हमारे जीवन में प्रदान करने वाला परमेश्वर। Now, when I'm saying God all the time over here, I am talking only about the God of the Bible named Jehovah. देखिए, मैं जब परमेश्वर जो पुकार रहा हूं, मैं पवित्र पुस्तक की यहोवा की बात कर रहा हूं। Please do not mistake this with all the other gods people have made up in their lives. देखिए, दूसरे देवताओं के समान या दूसरे देवताओं के साथ आप संदेह ना करना, जो लोगों ने जो है अलग अलग नाम रखे हैं। Because every single one of these promises, every single one of this quality of God is only the God of the Bible. देखिए, हर एक खूबी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप परमेश्वर के देखते हो, वो पवित्र पुस्तक के परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। So the only way to walk in the plan that God the Creator has for you and to receive the promises and to have the life we are supposed to live, it is to be through Jesus Christ. देखिए, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, मसीह जीवन के द्वारा आप अपने जीवन बिताओगे, तो परमेश्वर ने कहा वो आशीष अनुग्रह जो है वो हमारे जीवन में जो है हमें प्राप्त होगा। So when you read the Bible, first surrender to Jesus Christ and say, yes, I believe this because you are the only true living God. जब हम पवित्र पुस्तक पढ़ते हैं
तो सबसे पहले हमें ये समझना है और ये करना है कि यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, और ये समझना है, ये मानना है कि यीशु मसीह ही केवल जो है सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। Go back a couple of weeks, 2, 3 weeks in the teaching we had online, and you will see where I clearly teach that the God of the Bible will not share his name or his glory with any other God. 2-3 हफ्ते पहले की प्रचार अगर आप सुनोगे तो आप मैं वहां पे बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता हूं कि पवित्र पुस्तक के यहोवा परमेश्वर जो है अपनी महिमा, अपनी श्रेष्ठता किसी और के साथ जो है वो बांटते नहीं है। So, if you want the victory that Gideon achieved in Judges chapter 7, you have to first of all not doubt in what God is doing right now in your life. देखिए, गिदियन के जीवन में न्यायों की किताब 7वें अध्याय में जो विजय गिदियन को मिला, अगर वो आपके जीवन में अगर आपको पाना है तो सबसे प्रथम चीज आपको ये करना है, परमेश्वर के कामों पर संदेह ना करें। So the first thing God did with the army of Gideon was he told those that if you fear because of what is in front of you, you are not qualified to move on with me to the next battle, to the real battle. सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने सेना की टुकड़ी से जो ये किया, वो योद्धा से ये कहा, अगर आप घबराए हुए हो, आप डरे हुए हो जो आगे आने वाला है, तो आप जो है इस लड़ाई, इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। So God takes very seriously how you receive his word and how much you depend on it as the only truth. परमेश्वर जो है ये चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि किस तरह से आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो, किस तरह से आप उसे अपने जीवन में लागू करते हो, और किस तरह से आप उसे देखते हो, उसे परमेश्वर बहुत गंभीरता से लेते हैं। Let's go to Luke chapter 8. लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम जरा अपना ध्यान लगाएं। Here we're going to see something about how important, how seriously Jesus Christ takes that we put faith in his words. Luke यहाँ chapter. पर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में ध्यान देते हैं कि हम विश्वास में कितने उतर कर चलते हैं या कितना निर्भर रहते हैं। Let's read from verse 22 to verse 25. 23वें वचन से 25वें कलाम तक जरा हम पढ़े। We all know this story, right? About Jesus when he calms the storm. आमीन। हमें ये कहानी बहुत अच्छे से पता है, जब यीशु मसीह आंधी को शांत करते हैं। And we all love the story because we see that Jesus Christ has the power to do all things. और हम ये कहानी इसीलिए पसंद करते हैं कि यीशु मसीह को हर एक चीज करने का बल और ताकत है। Amen. Thank you, Father. Let's read verse 22. Then, now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples. And he said unto them, let us go over onto the other side of the lake. And they launched forth. 22वां कलाम पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अर्थात उन्होंने नाव खोल दी। आमीन। Yeah, then verse 23. But as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. 23वां कलाम। पर जब नाव चल रही थी तो वो वहां सो गए, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उन्होंने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गए। And he said unto them, where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying to one another, what manner of man is this? For he commanded even the winds and the water, and they obey him. तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डरे हुए थे
और डरे डर गए और अतिचंभव होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। Now, this is a story that is very common. We all learn it from church many times. ये कहानी जो है बहुत ही साधारण कहानी है, जहाँ पे हमने अनेक दफा हमने कलीसिया में ये कहानी पढ़ी है। And I've preached about it a few times. And it wasn't until a while ago I heard a preacher give a different point of view that made me understand the depth, the real understanding or a deeper understanding of what Christ is saying here. देखिए, मैंने ये इस वचन से अनेक दफा प्रचार भी किया है, परंतु पिछले दिनों में मैंने एक दूसरे प्रचारक से इस सेम वचन के बारे में मैंने सुना, और उन्होंने एक अलग तरीके से इस वचन को पेश किया, जो मुझे इस वचन की गहराई को और समझने में मदद किया। Now, we all understand that they were crossing the river and a storm arose, and these were all expert fishermen. Or most देखिए of- हम ये Hmm. देखिए हम जानते हैं कि इस नाव में जो है सब मछुआरे हैं, और अच्छे मछुआरे हैं जो सालों से मछुआरे हैं। और ये नाव पर जाते हैं, सफर शुरुआत होती है तो बड़ी आंधी आती है और उनकी नाव जोखिम में हो जाती है। So if they were afraid for their lives, okay, that means they knew there was real danger. देखिए, जब ये मछुआरे अपने जीवन के लिए घबरा रहे थे, जब मछुआरे होने के बावजूद भी उस नाव पर इनको घबराना हुआ, तब हम ये समझ सकते हैं कि सच में या हकीकत में इनका जीवन जो है या वो स्थिति बहुत गंभीर था। And it says here in the word that they were in trouble. That means that probably the water was coming in like a storm, and they were trying to pull the water out, and the boat was shaking back and forth, and they knew that they were going to die. देखिए, उन्हें ये पता था कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि नाव जो है वो ऊपर खबरने लगी, पानी नाव के अंदर भरने लगा, बहुत बड़ी आंधी और तूफान नाव के सामने आने लगी, तो वो घबरा गए। So during this whole episode where there's a strong storm, must have been really loud. They must have been really screaming at the top of their voice, let's take the water out, and really stressed out and screaming. In this whole time, what was Jesus doing? He was sleeping. देखिए, जब आंधी तूफान आई तो ये लोग घबरा गए थे, लोग शायद चिल्ला रहे होंगे कि पानी को बाहर निकालते हैं, हम क्या करें। ये इतने गंभीर एक समय के समय पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वो नीचे जो है वहां पर वो सो रहे थे या विश्राम कर रहे थे। And sometimes this is the way we act when things are not working out the way they should be working out in our lives. देखिए, कई समय पर जो है जीवन में हम इस प्रकार से, जब चीजें हमारे जीवन में अम, जिस जिस हिसाब से होनी चाहिए, अगर उस हिसाब से ना होने हो, तो हम इस प्रकार से जो है स्वभाव में हम जीते हैं। We're not able to make our payments. जब हम अपने समय पर जो है हम जब अपने बिल पे नहीं कर पाते हैं, We're not able to make our sales. जब हम जो हमारे काम कर रहे हैं तो टारगेट या सेल्स अचीव नहीं कर पाते, We're not able to put our children in the school we want to put them. जहां पर हमारे बच्चों को हमें स्कूल में दाखिल करना है, वहां पर हमें उन्हें दाखिल नहीं कर पाते। We're not able to get the paperwork done on time in order to move forward with the next step in our life. देखिए, जो भी कागज पत्र हमें जो करना है, जो हमारे जीवन के अगले पड़ाव के लिए हमें जरूरी है, वो हम समय पर कर नहीं पाते। No matter what we do, that pain will not go away, that is physically hurting us in our body. देखिए, जो भी हम करें, वो दर्द हमारे जीवन से निकल नहीं जा रही, वो हमें जो है शारीरिक तौर पर जो है तकलीफ देता जा रहा है। So all these storms are happening, and we know that Jesus is in our boat. ये सारी आंधी तूफान हमारे जीवन में हो रहा है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे नाव पर बैठे हैं। And we think, does he even care what is about to happen to us? तब हम ये सोचते हैं कि क्या मसीह को याद भी है, क्या वो हमारे और चिंता भी करते हैं कि क्या हो रहा है। Does he care what I am going through inside of me? मेरे जीवन के अंदर मैं किस चीज को झेल रहा हूं, क्या मसीह इस चीज को जानते हैं।
I know he has the power to change everything right now for me, but he's just sleeping. देखिए, मैं जानता हूं कि परमेश्वर के हाथों में वो सारी ताकत और बल है जो मेरी स्थिति को पूरी तरह बदल दे, पर वो अभी विश्राम कर रहे हैं। He has done so many things in my life before, but still in this moment, I am afraid that everything is going to be lost and he is just sleeping. And I'm actually angry with Jesus. देखिए, मेरे जीवन में मसीह ने इतने सारे अद्भुत कार्य किए हैं, परंतु अभी इस महान तूफान के समय पर जो है मसीह जो है विश्राम कर रहे हैं, और मैं अभी मसीह पर जो है क्रोधित हूं या मुझे गुस्सा आ रहा है। So we have to understand that the situation was real. हमें ये समझना है कि ये जो समय था वो सही, वो हकीकत था। Now, at that moment, they woke up Jesus and they said, Master, Master, we are dying. उस समय पर उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और कहा कि मालिक, स्वामी, हम मर रहे हैं। Have you ever done that with the Lord? क्या आपने इस प्रकार कभी परमेश्वर से किया है? Have you cried out to him and have you prayed and said, Lord, I am dying here. I can't take it anymore. क्या आपने मसीह से रोकर विलाप की है, विनती की है कि परमेश्वर जो है मैं अभी और इसे झेल नहीं सकता, जो है मुझसे हो नहीं पा रहा परमेश्वर। Now, why was Jesus so calm? And why was he sleeping in the middle of the storm? क्यों परमेश्वर इतने शांत थे? क्यों परमेश्वर उस आंधी तूफान के बीच में वो विश्राम कर रहे थे या सो रहे थे? Because he knows who he is. क्योंकि मसीह जानता है, या वो जानते थे कि वो कौन है, He knows who God the Father is. और वो जानते थे कि स्वर्गीय पिता कौन है। He knows that no matter what happens, it's always going to be for the good of the people of God. चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मसीह ये जानते थे कि जो भी होगा वो लोगों की भलाई और अच्छे के लिए होगा। He knows that his word that comes out of his mouth will not come back empty, but will fulfill its purpose. वो जानते थे कि जो भी वचन और शब्द उनके जबान से निकलेगी वो खाली ना होगा, परंतु वो उसके कार्य को पूरा करते हुए लौट कर आएगी। And I believe he was also sleeping because he was probably very tired. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि शायद वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए वो विश्राम कर रहे थे, इसीलिए वो सो रहे थे। If you read the stories of Jesus when he was ministering to people, there were thousands of people around him. He's praying for all of them. And it says many times he didn't even have time to eat. देखिए, जब हम यीशु मसीह की कहानियां पढ़े, जब उनकी सेवकाई के बारे में जब हम पढ़े, तब हम ये समझ सकते हैं कि हजारों की गिनती में लोग जो है यीशु मसीह से मिलने या उससे सुनने आते थे, और उन्हें खाने का तक समय नहीं मिलता था। So he probably came from that situation where he had thousands of people around him, and he had probably been praying for them and touching them and healing them for hours on end. And now, in the middle of the storm, he was so tired he fell asleep. देखिए, ये आंधी के बीच में वो इतने थके हुए थे, क्योंकि हजारों की गिनती में लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे, वो सेवकाई करते थे, उन्हें जो है अपने लिए समय नहीं मिलता। And then when he gets up, first thing he says, I think he probably said it in an angry fashion. He probably got angry from being woken up from his sleep and said, "Where is your faith?" मेरा ख्याल ये है कि जब उन्हें उठाया गया, तब पहला जब उनका जब वो कहे, तो वो शायद गुस्से में कहे होंगे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। And Jesus was right to be angry, and he's right to be angry with us now when we just lose our mind and don't do what we're supposed to do right now. देखिए, यीशु मसीह उस समय पर वो क्रोधित होना जायज था, वो आज भी हमारे जीवन को देखकर क्रोधित होते हैं, वो जायज है, क्योंकि हमें जो करना है हमारे जीवन में जब हम वो करते नहीं है तो वो क्रोधित होते हैं। Instead of focusing on what is in front of you today and what needs to get done, you're worrying about tomorrow and next month and next year, and you are creating the storm in your mind instead of enjoying the pleasures of being in the presence of Jesus Christ. देखिए, यीशु मसीह के उपस्थिति में रहकर उसके सानिध्य को आनंद करने से बजाय जो है हम अपने जीवन की आंधी और तूफान जो आ रहा है, जो आएगा, उसके बारे में हम व्याकुल और चिंतित रहते हैं। See, Jesus also was angry, I believe, because
they know who Jesus is and what he can do. देखिए, यीशु मसीह इसीलिए भी क्रोधित थे क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, वो और वो क्या कर सकता है। So even if they were to die in that storm, don't you think Jesus could raise them back up from the dead? क्या अगर वो मछुआरे और यीशु मसीह के चेले अगर उस आंधी तूफान में अपने जीवन खो भी देते, तो क्या आप ये विश्वास नहीं रखते कि यीशु मसीह उन्हें मुर्दे से जिला सकते थे? This is done over and over again throughout the whole Bible. और ये पवित्र पुस्तक के शुरुआत से आखिरी तक जो है बारंबार ये चीज को हम देखते हैं। But I believe one of the main reasons why Jesus was angry at that very moment was because he had already given them word of what is going to happen. देखिए, यीशु मसीह क्यों क्रोधित थे, जो मुझे समझता है क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही उन्हें कहा था कि क्या होने वाला है। Let's go back to the word हम वचन की ओर वापस ध्यान लगाए। in verse 22. 22वें कलाम में हम पढ़ते हैं, Here Jesus says unto them, let us go over onto the other side of the lake. फिर एक दिन वह और उनके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। So what was the word that Jesus gave to his disciples? तो वो वाक्य या वो वचन क्या था जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया? He said, we will go over to the other side of the lake. चलो हम झील के उस पार चले। So when Jesus has said that he will do this and we are going to do this, means it is going to happen. जब यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि हम झील के उस पार जाएंगे या उस पार चलेंगे, तब वो जरूर उसी प्रकार होगा। So no matter what storm comes in the way, you will end up on the other side. तो जो भी आंधी तूफान इसके बीच में आए, हम निश्चय तौर पर झील के उस पार चलेंगे या जाएंगे। Even if the boat sinks and you are all dead in the water, you will end up on the other side. शायद वो नाव डूब जाए, आप सब पानी के अंदर मर जाए, फिर भी जो है आप झील के उस पार जाओगे। And Jesus has the power to raise you back to life. यीशु मसीह को वो ताकत है, वो बल है, आपको वो जो है वापस जीवन में वापस जो है आप वापस को उठा सकते हैं। So that's why I believe Jesus, when he woke up, the first thing he told them, where is your faith? और इसीलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो सबसे प्रथम चीज जो यीशु मसीह ने किया, कि यही किया कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। Didn't I just tell you, didn't I just give you a promise? I give you the word that nothing is going to happen. We will go on to the other side. यीशु मसीह ने क्या ये वादा नहीं दिया कि कुछ ना होगा, हम उस पार जाएंगे? क्या यीशु मसीह ने, क्या मैंने ये तुमसे कहा नहीं? So when he woke up and he saw this chaos, he probably said, what are these people doing? Don't they know who I am? जब उन्होंने ये देखा, जब वो उठे और ये सारी चीजें जब उनके सामने होने लगी, तो उन्होंने ये कहा, इनके पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैंने इन्हें वादा दिया था। And I sometimes personally get angry and I'm upset with people who have been with us for a long time and even have been many years in the Lord, and they act like this little children who still don't understand the power of God. देखिए, मैं अनेक समय पर जो है मैं भी संदेह हो जाता है, जो लोग जब परमेश्वर की ताकत और बल के बारे में जो है अनजान रहते हैं। And they run around like these people probably were in the boat where everything is traumatic, everything is a disaster, nothing is working out for them, and they just think about this all day long. और जो है ये पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, कर कर जो है पूरे दिन वो सोचते रहते हैं, घबराए रहते हैं। If you just take the Bible and start speaking over your life, the promises God has for those who truly follow Him, I guarantee that storm will stop in your mind. जब आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह विश्वास करोगे, मैं आपसे निश्चित तौर पर ये गारंटी देता हूं कि वो आंधी, वो तूफान आपके जीवन में पूरी तरह रुक जाएगा। So that is why Jesus rebuked them and he actually scolded them, saying, where is your faith? और इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और उन्हें कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? Where is your faith in my words? मेरे वचनों पर, मेरे वाक्यों पर तुम्हारा विश्वास कहाँ है?
See, when you start having faith in what you're reading in the Bible, जब आपको परमेश्वर के वचन पर जो आप पढ़ रहे हो उस पे जब आपको भरोसा होने लगता है, when you start to have faith in every single prayer you are praying, जब आपको हर एक प्रार्थना जो आप प्रार्थना करते हो उस पर जब आपको विश्वास होने लगता है, when you start having faith in every single promise in the Bible you are speaking through your mouth over your life, आपके पवित्र वचन से हर एक विश्वास, हर एक वादों के लिए जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जबान से जब आप उसे कबूल करते हो, and there is no doubt in your heart that God is capable of doing everything He has spoken He will do, जब आपके मन में कोई शंका आपको नहीं है कि परमेश्वर ने जो भी वायदा दिया है वो मेरे जीवन में जरूर और जरूर पूरा होगा, then you will sleep through the storm. तब आप जो है आंधी और तूफान के बीच में भी जो है आराम से जो है विश्राम करोगे, And you will see victory over victory. और आप जो है विजय के ऊपर विजय देखोगे। And even if you get up and the storm actually is very real, और जब आप उठोगे तब अगर फिर भी अगर आंधी अगर एकदम कठिन है, एकदम एकदम तेजी से है, you will speak to the storm and say, enough is enough. आप जो है उस आंधी को देखकर कहोगे अब बस हो गया, I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूं, There's nothing around me that can dominate me. मेरे आसपास ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो मेरे ऊपर राज करे। The Lord is my provider. मेरा परमेश्वर मेरे वो मुझे देते हैं। आमेन। My Lord is my helper. परमेश्वर मेरे सहायक है। All things work out for the good of those who love the Lord. यीशु जो भी परमेश्वर हर एक चीज उनके लिए उत्तम होकर आता है या भलाई के लिए होता है जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सारी चीजें कर सकता हूँ मसीह के नाम पर जो मुझे बल देते हैं। I will no longer be a borrower, but I will be a lender. मैं अभी उधार मांगने वाला नहीं परंतु मैं पैसे देने वाला बनूंगा। Now, I'm not saying start living a fake life and just live up in the air with all these promises. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जो है झूठी जीवन जिए, जो इस प्रकार का एक दिखावा जीवन जिए करके मैं नहीं कह रहा। What I'm trying to say is put your trust in the Word of God. मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने विश्वास को पवित्र वचन पर रखें। Take authority over that storm and tell it to shut up. वो आंधी और तूफान की ओर जो है एक अधिकार से जो कहे कि शांत हो जाए। And before you have all the finances and all the riches you are wanting, start acting as if you already have those and start giving as if you already have those things. आपके पास वो धनराशि आने से पहले ही जो है महान बड़े धनराशि आने से पहले ही अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि आपके पास वो पहले से ही है, और उस प्रकार से देने के लिए, उस प्रकार से खर्च करने के लिए या दूसरों को मदद करने के लिए जो है आप इस्तेमाल करें। And start before having that special gift of healing where people even get raised from the dead, start praying for every single person you know and watch the miracle happen. देखिए, मुर्दों को जिलाने से पहले जो है हर एक व्यक्ति जो आप जानते हो उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें और देखें परमेश्वर का चमत्कार उनके जीवन पर किस प्रकार से शुरुआत होता है। Your faith will move mountains. आपका विश्वास जो है वो पहाड़ों को हिलाएगा। But your doubt will only create more storms. परंतु आपकी शंका जो है वो और आंधी और तूफान को उत्पन्न करेगा। So Jesus told them, we will go to the other side. परंतु यीशु मसीह ने कहा कि हम उस पार जाएंगे। And when they doubted and they were waking him up from his sleep, that's when he got angry and said, didn't I just say we'll go to the other side? तब जब उन्हें नींद से उठाया गया तब परमेश्वर जो है थोड़े क्रोधित गुस्से में कहते हैं, क्या मैंने आपसे कहा नहीं कि हम उस पार जाएंगे? So what is Jesus telling you today? क्या यीशु मसीह क्या हमसे आज बात करना चाहते हैं? Stick to that word. उस वचन पर हम भरोसा करें। And if the devil starts creating a storm in your mind, अगर शैतान आपके दिमाग में जो एक आंधी भेज रहा है या
पैदा कर रहा है, if your situation is actually speaking back to you and you're seeing the storm arise, अगर आपकी सिचुएशन, आपकी अवस्था जो है आपके जीवन पर उमड़ रही है, वो आपकी ओर आ रहा है, so then just take the authority Jesus has given every single one who is a child of God and speak to that storm and say, it's over, no more. और वो अधिकार जो यीशु मसीह ने हर एक परमेश्वर के संतान को दिया है, वो उस अधिकार को ले और अधिकार से कहे कि बस हो गया, अब और नहीं। You are only a child of God if you have accepted Jesus Christ in your heart as your only God. जब आप परमेश्वर के पुत्र तब होते हो जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता होकर, या यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और केवल वही मेरा परमेश्वर है, जब ये स्वीकार करते हैं तब आप परमेश्वर के संतान बनते हैं। So I speak right now every storm to be still. मैं अभी बात करता हूँ, कहता हूँ कि हर एक आंधी तूफान कि वो शांत हो जाए। I speak peace. मैं शांति की बात करता हूँ। I speak prosperity. मैं उन्नति और की बात करता हूँ। I speak wisdom. मैं बुद्धि और ज्ञान की बात करता हूँ। I speak knowledge. मैं दिमाग और ज्ञान पर देने बात करता हूँ। I speak holiness. मैं पवित्रता की बात करता हूँ। And I speak righteousness in the life of everyone right now. मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में वो भलाई के लिए, वो चंगा एक न्याय का जीवन जीने का एक जीवन को ऐलान करता हूँ। I speak these things in the name of Jesus. मैं ये यीशु नासरी के नाम पर मांगता हूँ। I believe it. मैं ये विश्वास करता हूँ। It is done. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये हो चुका है। All have a testimony for the Lord. और हमारे सबके पास एक गवाही होगा परमेश्वर के सामने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।